back. What the hell is so good about this morning? This is a Monday morning. And this continues. This continues for the rest of the week. You know, Tuesday, Wednesday, I get this whatever kind of good morning. Thursday, a little better, with a pale smile. Good morning. Friday, when I wish him, good morning, dude, this is what I get back. Good Lord, finally this is a Friday morning. You know, he's so happy, and he looks at me and says, "That a beautiful shirt you're wearing." And I go like, "Dude, this is the same shirt I've been wearing for past 3 days. You didn't notice." All of a sudden he looks at my tummy and says, "Congratulations." Not so, man. I mean, right at the time when we're about to get into the groove of this Friday weekend and all that stuff, we get this email from transport. Due to heavy rains and traffic jam in various parts of the city, we are anticipating delay in forthcoming login logouts. You know, that's how weekend starts. So this is the same colleague of mine keeps telling me that, "Ranjan, you don't look married." Oh, what the hell is that, man? I mean, how can you not look being married? I mean, just because I look happy, I'm not married? What kind of logic is that? I am married. I mean, whenever I think of my marriage, I go back to that, you know, that day when I saw my wife for the first time, when I met her for the first time. I mean, she was so beautiful that day, you know, it was incredible. We fell in love, and like every good thing has to come to an end, we got married. And I mean, right after we got married, for the first few weeks, I spoke and she listened. Then she spoke and I listened to it. Since then, we both have been speaking, talking, shouting, yelling at each other, and the neighbors are listening. Thank you. I'll tell you one more thing. You know, I've read somewhere that God, He created planet Earth and then rested. God created man and then rested. God created woman. Since then, neither God nor man has ever rested. Now, शादी के बाद मैं एक चीज तो रियलाइज किया भाई, सीरियसली एक चीज तो मुझे समझ में आया कि पति पत्नी के रिश्ते में सबसे जरूरी चीज होता है सोना. I mean gold, you know, you got to give those expensive jewelries to your wife. What's wrong with that? तो एक दिन क्या बोला है ना, मेरा बेटा जो है नहीं 7 साल का बेटा मेरे सामने आता है, कुछ ऐसे आके बोलता है मेरा बेटा, "पापा पापा यशोमती मैया से बोले नंद लाला." मुझे मतलब बहुत खुशी होता है सुन के कि चलो कुछ अच्छा सीख रहा है बेटा. "पापा यशोमती मैया से बोले नंद लाला, टाटा स्काई लगा देना तो लाइफ चिंगा लाला." तभी मुझे फोन आता है ना, मैं फोन उठाता हूँ, हेलो, उधर से आवाज आती है, "रंजन, मैं गब्बर सिंह बोल रहा हूँ रामगढ़ से." ओह सर, मुझे लगा आप मुंह से बोल रहे हैं. क्या? सॉरी, बैक जो, कंटिन्यू. "रंजन, तेरी बीवी मेरे कब्जे में है, 1 लाख रुपया लेके आ और अपनी बीवी को लेके जा." मैं बोलता हूँ, "सर आप 1 लाख बीच रखो, उसे छोड़ो मत." I read it somewhere, I keep reading, you know. I read it somewhere that the biggest revenge you can take from the person who steals your wife is to let him keep her. You'll realize sooner or later, you know. So, आप छोड़ो मत उसको. So, आप लोग जानते हो मेरा पर्सनैलिटी कुछ ऐसा है ना, मेरे पूरे बॉलीवुड के दोस्त चले जाते हैं उसको बचाने के लिए. क्या हुआ? I mean, हाइट थोड़ा शॉर्ट है, बाल कम है, पेट बाहर है, बाकी पूरा सलमान जैसा होगी ना भाई. तो चले जाते हैं पूरे. सबसे पहले पहुंच जाते हैं शाहरुख खान साहब. शाहरुख खान पहुंच जाते हैं. खान से मुझे याद आता है ना, मेरे एक खान दोस्त है, खान साहब एक दोस्त है. ये खान जो होते हैं ना, बड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, जिंदा दिल होते हैं ना, मस्त बंदे होते हैं वो. खान साहब मुझे मिल गए एक दिन रास्ते पे. मैं और खान साहब खड़े हैं, सामने से 3 आदमी चल के आ रहे हैं. तो खान साहब कुछ ऐसे बोले, "कोची खाती काबुल खाती, खबीज की औलाद, उससे मैं नफरत करती." अब सामने से 3 आदमी आ रहे हैं तो मैं कंफ्यूज हो गया भाई. खान साहब सॉरी, लेकिन किससे नफरत करते हैं? 3 आदमी आ रहे हैं. "उससे मैं नफरत करती." ठीक है, कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन किससे नफरत कर रहे हैं? कभी इसकी औलाद नफरत. और एक बार पूछा, खान साहब ने बंदूक निकाली, दाएं, "जो बच गया उससे नफरत करती." They can go to any point, they can go to any extent to prove their point. तो यही खान साहब थे. एक बार दोबारा मुझसे मिले और बोले कि आज मैं बहुत खुश होती. मैं क्यों खुश हो रहे हैं बताइए? "मेरे को बेटा होती, क्या तुम नाम रखती?" मैं रखता नहीं, रखता हूँ मैं, लेकिन बोलिए, "मेरे को बेटा होती, क्या नाम रखती?" और इसके पहले आपका, "हाँ, सबसे बड़ा बेटा है लियाकत इलाही."
उसके बाद बरकत इलाही, उसके बाद लश्कर इलाही। प्लीज इसका नाम रखिए बस्कर इलाही भाई। तो शाहरुख खान में अटके हुए थे, सॉरी तुलसी मैम, शाहरुख खान कुछ ऐसे आ रहे हैं गब्बर के सामने। बाबूजी ने कहा शराब घर, बाबूजी ने कहा घर छोड़ दो। मैंने कहा मैं क्यों छोड़ू, आप ऑटो लेके चल जाओ। पारो कहती है शराब छोड़ दो। मैं कहता हूँ तेरे बाप के पैसे से पीता हूँ क्या। मैनेजर्स कहते हैं एक्स्ट्रा ब्रेक्स लेना छोड़ दो। काम कैसे करें फिर। मैं आज तुझसे कहता हूँ भाभी को छोड़ दे। भाभी को छोड़ दे। गब्बर बंदूक निकाला। तू बोलता तो मैं गौरी को भी छोड़ के जाता यहाँ। मैं जा रहा हूँ। निकल गए, शाहरुख खान साहब निकल गए। सुनील शेट्टी साहब आ गए। वैसे भी उनको ज्यादा कुछ काम रहता नहीं। सुनील शेट्टी कुछ ऐसे आए। गब्बर गब्बर मैं तुझसे डर जाऊँ, ये हो नहीं सकता। तू मुझे डराई, मैं होने नहीं दूंगा गब्बर। भाभी जान को छोड़ दे वरना मैं तेरी। बंदूक निकालता है। पूजा करूंगा। चले जाते हैं। अल्ताफ राजा साहब को कैसे मालूम पड़ जाता है। तो अल्ताफ राजा साहब अपने अंदाज में आ जाते हैं गब्बर के पास। अमा तुम तो ठहरे डाकू गब्बर, काय को कर रहे हो गड़बड़। तुम तो ठहरे डाकू गब्बर, काय को कर रहे गड़बड़। भाभी जान को छोड़ दो जरा और रख लो मुझे डार्लिंग बनाकर। पर भड़क जाते हैं कि 2020 के टाइम में 50-50 बॉल है। डुअल सिम कनेक्शन भगाओ इसको भगाओ। जाने से पहले अल्ताफ राजा साहब अपने स्टाइल में एक शायरी सुनाते हैं। अर्ज किया है, मुलाहिजा फरमाइए। कम ऑन। दगाफुल कर चुके इश्क में खतूत के खाक का गैरो तलब हुआ। नीचे सबटाइटल आ रहा है गाइस। दगाफुल कर चुके इश्क में खतूत के खाक का गैरो तलब हुआ। अब न जाने इशारे का क्या मतलब हुआ। चले जाते हुए लास्ट में आ जाते हैं नाना साहब, नाना पाटेकर। दोनों मेरे सामने गब्बर और नाना ऐसे आते हैं कुछ। अच्छा है भाभी को उठा के लाया। अच्छा है डाकू है तू जो मन मर्जी करेगा। अच्छा है मुझे मालूम है इसको देख के कौन सा गाना गाया होगा। रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है। अबे गॉगल उतार दुनिया देख, आंख जिससे लड़ी हो तेरी अम्मी से भी बड़ी है। अच्छा उठाना ही है तो मेरी बीवी को क्यों नहीं उठाती। उसके चक्कर में मैं खुद उठ जाऊंगा एक दिन। गाना गाती है कांटा लगा, मैं कहता हूँ जाके डेटॉल लगा। अच्छा है मैं जा रहा हूँ। ठाकुर साहब आए थे, उनका हाथ काट दिया, मेरा पता नहीं क्या काट दिया। ना पड़ेगा निकल लिए। तो नेक्स्ट डे मुझे गब्बर का फोन आता है। रंजन दिवाली बम्पर ऑफर है, 50,000 में लेके जाओ अपनी बीवी को। मेरे को नको भाई, तुम रखो, मेरे को नको। तो खुद घर में आके मेरू कैब में आके छोड़ के जाता है भाभी को, मेरी वाइफ को घर में आके छोड़ के जाता है। यही कंधे पे सर पटक कर। कैसे झेलता है इसे यार, कैसे झेलता है यार। मतलब डाकू का अड्डा है क्या है। कहती इंटरनेट चाहिए, फेसबुक चाहिए, ट्विटर चाहिए। I mean, she is everywhere. Let me tell you guys, she is someone who is everywhere. She has to be on Facebook just because of the only reason she can poke everyone on Facebook virtually, you know. I'm not on Twitter, and let me tell you the reason why I'm not on Twitter. Twitter basically gives you 140 characters. People who have been using it, they know. All you get is 140 characters. So, merely 2 sentences. So you communicate basically one thought at a time. You communicate one thought at a time on Twitter. And you know guys, who else communicates one thought at a time? 3-year-olds. Seriously. So stop being babies and using Twitter. Now, right before I conclude my act, I would request you guys to do a small little activity with me. This is an activity what Greeks used to do when they were into wars and all. They used to do this to boost their confidence. So I'd request all of you to cooperate with me in this activity. I believe that no one has any reservations against Greeks, just because their soldiers wore those mini skirts in the movie 300. So are we cool with Greeks?
If so, then I would request all of you to please stand up at your respective place.